हाँ जी, लेक्चर नंबर सेकंड, कंपलैक्स नंबर। कंपलैक्स नंबर अज आप करांगे सम। सम बेस ऑन अयोटा। ओके, अज आप वो सम करने हैं जो अपन अयोटा की पावर विच कोई नंबर गिवन होणगे, उसनों इवैल्यूएट करना है। तो देखो, इवैल्यूएट अयोटा की पावर 51। अयोटा की पावर 51 नूं सॉल्व करना है। तो देखो, जो आप रिजल्ट किए है, अपने को सिर्फ अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, सिर्फ इन्ना ही रिजल्ट गिवन है। बट आप अयोटा की पावर 51 नूं सॉल्व करना है। मीनस अयोटा की पावर 51 नूं अयोटा की पावर 2 की हैल्प नाल आप सॉल्व करांगे। ओवरऑल आप 51 नूं 51 नूं पावर 2 विच ब्रेक करांगे। तो देखो किवें करांगे, कुछ आप रफ वर्क करते हैं। 51 डिवाइड बाय 2, देन क्वोशंट इज 25, देन रिमाइंडर इज 1। So 51 represent in by division algorithm 2 multiply 25 plus 1. 51 represent in 2 multiply 25 plus 1 means divisor multiply quotient plus remainder. Okay, so देखो, अयोटा की पावर 51 नूं आपां इस टर्म विच रीप्रजेंट करांगे। अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई 25 प्लस 1। सो आपां इस पावर नूं ईजली सॉल्व करांगे। अयोटा स्केयर दी पावर 25 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1 कि बेस सेम होन तो पावर अपनी की है प्लस हो जाती है। जे पावर प्लस होन तो बेस की है मल्टीप्लाई विच सैपरेट हो जाती है। तो पहला वाला रिजल्ट, तो अयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू -1, -1 की पावर 25 मल्टीप्लाई अयोटा। -1 की पावर 25 is odd number, then overall -1 multiply iota is equal to -iota is answer. Now iota the power 37 evaluate means अपन iota की पावर 37 नूं सॉल्व करना है। 37 सॉल्व करने लई सो आप 37 नूं 2 ना करो डिवाइड, देन क्वोशंट इज 18 एंड रिमाइंडर इज 1, देन 37 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 1। सो आइटा पावर 37 रिप्रेजेंट इन आइटा स्केयर the power 18 multiply iota the power 1। so देखो, it is remainder and is quotient and is divisor। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ याद करने का एक नवा तरीका मिल गया। सो किवें करांगे आप याद नूं, आइटा दी पावर डिवाइजर होल पावर कोशेंट इनटू आइटा पावर रिमाइंडर। तो देखो, आइटा स्केयर इज इक्वल टू -1
power 18 multiply iota. So minus 1 the power even number, then it become positive 1 multiply iota is equal to iota is answer. So next sum and last sum, iota power 13. So iota power 13 ਨੂੰ ਕਰੋ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਈਟਾ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਆਈਟਾ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਆਈਟਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਈਟਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟਾ ਸਕੇਅਰ -1 ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਈਟਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਾਵਰ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਾਂ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਦੈਨ quotient is 6, remainder is 1, then 13 represent in 2 multiply 6 plus 1। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਲ ਪਾਵਰ ਕੋਸ਼ੈਂਟ into iota the power remainder. Okay, then iota power 13 is equal to iota square the power 6 multiply iota, and iota square is equal to -1 the power 6 multiply iota, and -1 the power 6 is even number, then 1 multiply iota is equal to iota is answer. Now evaluate 1 by iota. ਸੋ ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ 1 by √3। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿਦ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਰੂਟ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼, तो देखो 1 by iota multiply with iota and divide by iota, and 1 multiply iota is equal to iota, and iota into iota square is equal to iota square is equal to -1, then overall answer is -1. Okay, and next sum is iota power -37। iota power -37 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਮੀਨਸ 1 by iota ਦੀ ਪਾਵਰ 37। ਸੋ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਟਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿਦ ਆਈਟਾ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਆਈਟਾ। ਓਕੇ, ਸੋ 1 multiply
आइटा इज इक्वल टू आइटा एंड आइटा की पावर 38। हुण आपां आइटा की पावर 38 नूं सॉल्व करना, सेम वही प्रोसैस 38 नूं करांगे आपां 2 नाल डिवाइड, कोशेंट 19 एंड रिमाइंडर इज 0। then 38 is equal to 2 multiply 19 plus 0। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ डिवाइजर एंड होल पावर इज कोशेंट मल्टीप्लाई आइटा की पावर रिमाइंडर। सो इस स्टैप के अकॉर्डिंग आपां इसनूं इत्थे पुट करांगे, आइटा डिवाइड बाय आइटा स्केयर 19 एंड आइटा स्केयर इज इक्वल टू -1 दी पावर 19 is an odd number, then overall our answer is negative, is answer। next sum है -25 रूट मल्टीप्लाई रूट ऑफ -49। सो अपना एक बेसिक रिजल्ट पहला किया सी कि रूट माइनस नूं सॉल्व करने लई आपां रूट माइनस नूं सॉल्व करने लई आपां आइटा साइन यूज करते हैं। ओके, अगेन रूट माइनस मीनस रूट के अंदर माइनस होवे, उस नूं खत्म करने लई आपां आइटा का सिंबल यूज करते हैं। ओके, सो बहुत सिंपल है। इस सम नूं देखो, रूट ऑफ 25 is 5 and root of -1 is आइटा, multiply root of 49 7 and root of minus आइटा, 5 into 7 35 आइटा into आइटा square and आइटा square is equal to -1 and 35 into -1 is -35। तो नेक्स्ट सम है रूट ऑफ -2 पावर 6। रूट 2 है -2 द रूट एंड होल पावर इज 6। इसनूं आपां इवैल्यूएट करना है। ओके, सो सेम जो रिजल्ट आपां इस सवाल में यूज किया सी वही रिजल्ट फिर यूज करांगे कि रूट के अंदर नैगेटिव ऑफ रूट नूं सॉल्व करने लई आपां आइटा साइन यूज करांगे। तो देखो रूट के अंदर नैगेटिव है तो नैगेटिव नूं खत्म करने लई आपां आइटा यूज करांगे। तो 2 का रूट जस्ट 2 का रूट अपना सॉल्व नहीं होंदा, इन रूट के अंदर रखांगे। दैन माइनस रूट नूं सॉल्व करने लई आपां आइटा यूज करांगे। ओके, दैन पावर इज 6। इट मीन्स रूट 2 पावर 6 मल्टीप्लाई आइटा पावर 6। रूट 2 पावर 6 मीन्स रूट 2 की पावर 1/2 इंटू 6 एंड आइटा पावर 6 मीन्स आइटा स्क्वायर इंटू 3। then it is solve 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3। 2 की पावर 3 मीन्स 8 and -1 is -8। सेकंड सम है -81 रूट ऑफ -81। तो पहले आप गल की सी कि रूट के कदे भी अपना नैगेटिव नंबर नहीं होंदा। यदि इफ
ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 81 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 81 ਮਲਟੀਪਲਾਈ -1। ਓਕੇ, ਸੋ 81 ਇੰਟੂ -1। ਸੋ -1 ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। सो पहला आप गल करते सी कि रूट के अंदर अपना नैगेटिव नंबर नॉट एग्जिस्ट, देन इज नॉट रियल नंबर। सो इन दिस चैप्टर विच जे रूट के अंदर माइनस आ जाए, रूट के अंदर माइनस आ जाए तो रूट के अंदर माइनस खत्म करने लई ਤੇ रूट ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਇਓਟਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਸ ਐਂਡ रूट ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸਮਝੋ कि 81 का रूट 9, बट रूट के अंदर माइनस एंड रूट आ गया, रूट के अंदर माइनस है। सो रूट के अंदर माइनस को खत्म करने लिए आप आयोटा की हेल्प लवांगे। ओके, इट इज आंसर कि माइनस 81 रूट 9 आयोटा। सो बेसिक बहुत क्लीयर है कि रूट के अंदर नैगेटिव को खत्म करने लिए आप और रूट के अंदर नैगेटिव को खत्म कर लिए आप आयोटा साइन यूज करते हैं। ओके, हाँ जी, प्रूफ डैट आईटा पावर 12 प्लस आईटा पावर 13 प्लस आईटा पावर 14 प्लस आईटा पावर 15 इज इक्वल टू 0। लैफ्ट हैंड साइड नूं आपां राइट हैंड साइड दे इक्वल टू प्रूफ करना है। तो देखो लैफ्ट हैंड साइड आईटा पावर 12 प्लस आईटा पावर 13 प्लस आईटा पावर 14 प्लस आईटा पावर 15 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ओके, इस नूं आपां सॉल्व करना है। तो पूरी इक्वेशन दे विचों आपां आईटा पावर 12 नूं कॉमन ले लांगे। तो अपने कोल की बचूगा, आईटा पावर 12 नूं आईटा पावर 12 नाल डिवाइड कीता सो 1, देन आईटा पावर 13 नूं आईटा पावर 12 नाल डिवाइड कीता, सो बेस सेम है, आपस च डिवाइड हो रहे हैं, देन पावर की है माइनस हो जानी है। अपने को बचूगा सिर्फ आईटा, सो प्लस आईटा सेम एज आईटा की पावर 14 नूं 12 नाल डिवाइड किया, आईटा स्केयर बचूगा प्लस आईटा 3, देन आईटा की पावर 12 1 प्लस आईटा स्केयर इज इक्वल टू -1 एंड आईटा पावर 3 नूं आपां सॉल्व करांगे आईटा स्केयर मल्टीप्लाई आईटा स्केयर इज इक्वल टू -1 एंड आईटा, देन बोथ आर मल्टीप्लाई, देन आंसर इज माइनस आईटा। देयरफॉर आईटा पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आईटा, +1 -1 प्लस आईटा माइनस आईटा, आईटा पावर 12 मल्टीप्लाई 0, देन आंसर बिकम 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट सम है प्रूफ डैट दिस टर्म इज इक्वल टू 0। ओके, so left hand side आईटा पावर 4n प्लस आईटा पावर 4n प्लस 1 प्लस आईटा पावर 4n प्लस 2 प्लस आईटा पावर 4n प्लस 3
ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 4n ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਸਟ 1 ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 4n ਪਲੱਸ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 4n ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਈਟਾ, ਕਿਉਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਾਵਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਮੀਨਸ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 4n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਆਈਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 4n ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਈਟਾ divided by iota ਦੀ power 4n, then we have iota, then same as iota square plus iota cube, iota ਦੀ power 4n 1 plus iota square minus 1 and plus iota cube is equal to minus iota plus 1, both are cancel, iota power 4n into 0 is equal to 0, then is equal to right hand side.